امت کائنات عالم میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کر سکے، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو، چاہے وہ عمل کی برائی ہو، چاہے وہ فکر و نظر کی برائی ہو، چاہے وہ کسی عزم کی برائی ہو۔ اور اندرونی سلامتی اگر خطرے میں آ رہی ہو تو اندرونی سلامتی کو بچانے کے لیے جو لوگ اندرونی سلامتی کو خطرہ لاحق کروا رہے ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور جہاد کی راہ اپنانی چاہیے۔ آج کے دن سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں بھی خصوصی طور پر سارا عالم انسانیت خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ انہوں نے خارجی طور پر بھی اسلام کا حسین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، مگر جب اندرونی طور پر اسلام کا چہرہ بگاڑا جانے لگا، جب اسلامی حلت و حرمت کا چہرہ بگاڑا جانے لگا، جب اسلام میں جواز اور عدم جواز میں فرق کو ختم کیا جانے لگا، تو ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک خلافت کا نعرہ لگانے والے یزید پلید کے خلاف امام حسین نے آ کر خلافت اور خالی آفت کا مفہوم دنیا کے سامنے واضح کیا تھا۔ خلافت اسلامیہ کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ اسلام میں جھوٹ حرام ہے، خلیفہ ظلم نہیں کرتا اس لیے کہ قرآن کا فرمان ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب تک ابو بکر کی صداقت سامنے تھی، حضرت عمر کی عدالت سامنے تھی، حضرت عثمان کی سخاوت و خلافت سامنے تھی، مولا کی شجاعت و امارت سامنے تھی، حسن مصطفیٰ کا صبر و تحمل سامنے تھا۔ ان تمام خلفائے اسلام کی زندگی کا پاکیزہ کیریکٹر بول رہا تھا کہ دنیا کے مسلمانوں کا مکمل ان پر اعتماد تھا، دنیا کے مسلمانوں کا مکمل ان پہ یقین تھا، دنیا کے مسلمان جانتے تھے کہ یہ حضرات نہ ہمارا عقیدہ بگڑنے دیں گے اور نہ دنیا کفر و شرک میں انسانیت کو تباہ و برباد ہونے دیں گے۔ چنانچہ ایک طرف مسلمانوں کے داخلی امور کی اصلاح کے لیے زور دیا جا رہا تھا اور دوسری طرف غیر مسلم دنیا میں گھس کر کے غیر مسلم دنیا کو اسلام کا دعوت نظارہ بھی پیش کیا جا رہا تھا۔ صحابہ کبار کے زمانے میں غیر مسلم دنیا دامن اسلام میں آ رہی تھی اور مسلم دنیا تقوی اور طہارت کی بہاروں کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسی نہج پر چل کر جب یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو امام حسین علی جدہ علیہ السلام سد راہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے خلفاء سے اعتراض نہیں کیا گیا، یزید ہی کے مقابلے میں حسین کیوں سامنے آ گئے؟ یہی وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یزید کا دامن نہ پکڑا ہوتا ہے امام حسین نے، اگر یزید کا گریبان نہ پھاڑا ہوتا ہے امام حسین نے، اگر یزید کے مقابلے میں امام حسین نہیں آئے ہوتے، اگر یزید کی بیعت کا انکار امام حسین نہ کیے ہوتے تو آج حلت و حرمت کا مفہوم غیر مبہم ہوتا ہوا نظر آتا۔ آج ایک شرابی اگر شراب پیتا ہے اور مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً گناہ کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں احساس گناہ بھی جاگتا رہتا ہے۔ آج اگر ایک ظالم ظلم کرتا ہے اور مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی اس کے دل و دماغ میں جاگتا رہتا ہے۔ ظلم کے ساتھ اگر احساس ظلم موجود ہو انسانوں میں، گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ موجود ہو انسانوں میں تو ایک نہ ایک دن ان کی فطرت صالحیت کی راہ پر ان کو لے آئے گی۔ مگر ظلم کے ساتھ اگر احساس ظلم بھی مر جائے اور گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی مر جائے تو ایسے انسان کو ضلالت کی راہ سے نکال کر ہدایت کی راہ پہ لانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے یزید کو اسی نہج اور راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا تھا جہاں ظلم کے ساتھ احساس ظلم بھی اس کی سرشت سے نکل رہا تھا، گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی اس کی سرشت سے ناپید ہو رہا تھا۔ ظلم کے ساتھ احساس ظلم موجود ہو تو انسان شرم محسوس کرتا ہے، مگر ظلم کے ساتھ احساس ظلم مٹ جائے تو انسان ظلم پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ گناہ کے ساتھ احساس گناہ زندہ ہو تو انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اور گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ مٹ جائے تو انسان گناہ بھی کرتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے۔ امام نے یزید کی باطل قوت کے مقابلے میں اپنے پورے خاندان کو کٹوا دینا اس لیے پسند کیا تھا کہ اگر وہ پورا خاندان امام نہ کٹواتے تو حرمت کی تے کے 2 نقطے یزید کاٹ دیتا، اسلامی فکر و نظر کے سائبان سے انسانی دنیا کو یزید ہٹا دیتا۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ تھا کہ خلیفہ جھوٹ نہیں بولتا، مگر اب اسی خلافت کے نام پر ایک ایسا جھوٹا آ گیا تھا کہ اگر اس کے جھوٹ کو بھی تسلیم کر لیا جاتا، اس کی بدباطنی کو بھی تسلیم کر لیا جاتا
जाता, उसकी बिगाड़ को और बदअमली को भी तस्लीम कर लिया जाता। तो आज एक मुसलमान अगर शराब पीता और उलमा उसे टोकते तो वो मोछों पे ताव देके कहता, मौलाना तुम इमाम हुसैन से ज्यादा दीन नहीं जानते हो, तुम शहजादे रसूल से ज्यादा दीन के इल्म को नहीं जानते हो। यजीद शराब पी रहा था और खलीफा इस्लाम होने का दावा भी कर रहा था। जब उन्होंने उसको नहीं टोका तो तुम हमको कौन होते हो टोकने वाले? इन्हीं तमामी सवालों का सुबह क़यामत तक जवाब देने के लिए इमाम करबला के मैदान में खड़े हो गए थे और यही से ये जहन दे रहे थे कि ऐ लोगों, मेरे नाना की शरीयत दी गई है तुम्हें, इल्म वकार के साथ इस शरीयत को समझो। खैर उम्मत के लक़ब से मुलक़्क़ब होने वाली उम्मत, तुझे हर मैदान का मुकाबला करना है, तुझे हर मैदान में इस्लाह अमल का काम करना है, तुझे हर मैदान में इस्लाह अकीदा का काम करना है। जब अकायद पे सब खून मारा गया था तब मौला मैदान में उतरे थे, जब आमाल सालिहा पे सब खून मारा गया था तो मौला का शहजादा मैदान करबला में उतरा था। हजरात, लोग ये कहते हैं कि ये जंग तो हुई मगर इस जंग में इमाम हुसैन जंग जीत गए थे और मूर्छा हार गए थे। मैं यहां इस मसले को जरा सा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस्लाम की खिदमत करने वाला, उम्मत मोहम्मदिया का जानिसार कोई भी फर्द न मूर्छा हारता है न जंग हारता है। बड़ा मशहूर शेर पढ़ा जाता है, वकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मूर्छा जीता है जंग हारा है। कैसे ये बात जहन में आ गई कि यजीद मूर्छा जीता है? करबला में पानी उसने बंद किया, इसलिए शायर के जहन में बात आई कि यजीद मूर्छा जीता है। इमाम हुसैन का सर उछाल दिया गया, इसलिए शायर के जहन में बात आई कि यजीद मूर्छा जीता है। अली असगर कत्ल कर दिए गए, इसलिए शायर के जहन में बात आई कि यजीद मूर्छा जीता है। शोहदाए इस्लाम की लाशों पर घोड़े दौड़ाकर उनकी लाशें रौंद दी गईं, इसलिए शायर के जहन में बात आई कि यजीद मूर्छा जीता है। मगर उबैदुल्लाह आज़मी इस शेर में थोड़ी सी तरमीम करके इसको पढ़ना चाहता है, वकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मूर्छा और जंग दोनों हारा है। बातिल न मूर्छा जीत सकता है न जंग जीत सकता है। अहले हक न मूर्छा हार सकते हैं न जंग हार सकते हैं। वकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मूर्छा और जंग दोनों हारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद, मुबल्लिगे इस्लाम, नारे तकबीर। अब आइए जरा से मैं इस मफहूम को मजीद वाज़ेह कर दूं। जंग किस बात की हुई थी? जब इख्तिलाफ होता है तो इख्तिलाफ की कोई वजह होती है, जब जंग होती है लोगों में तो जंग की कोई वजह होती है। इमाम हुसैन की भी अगर यजीद के साथ जंग हुई तो उसकी भी कोई वजह रही होगी। तो जंग जिस वजह से हुई है, मेयारे हक को बातिल सामने रखिए तो जंग का मफहूम और नतीजा भी सामने आएगा कि जंग में कैसे यजीद मूर्छा और जंग दोनों हारा है। देखो, क्या ये इस शर्त पे जंग लड़ी गई थी कि यजीद कह रहा था पानी बंद कर दूंगा तो तुम हार जाओगे, पानी पीने में कामयाब हो जाओगे तो तुम जीत जाओगे, हुसैन तुम अपने बच्चों को बचा ले जाओगे तो तुम जीत जाओगे, तुम्हारे बच्चे शहीद हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे? नहीं, हरगिज जंग का फैसला इन शराइत पर नहीं हुआ था और न ही इन शराइत पर वो जंग आलम वजूद में आई थी। आइए दुनिया की सबसे पहली जंग का मुताला करें ताकि समझ में बात आ जाए कि जंग के फतहो शिकस्त का नजरिया क्या हुआ करता है। औलादे आदम में हक व बातिल की पहली जंग जो लड़ी गई है, उन जंग लड़ने वालों का नाम हाबील और काबिल है। हाबील और काबिल की इस जंग में काबिल अपनी सगी बहन से अपनी शादी करना चाहता था। हाबील और काबिल की इस जंग में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, दोनों हमारी बारगाह में कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वो हक पे होगा और जिसकी कुर्बानी रद्द कर दी जाएगी वो बातिल पे होगा। जनाबे हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई थी और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई थी। अब उसने सोचा शिकस्त तो हो गई मेरी, कबूलियत और अदम कबूलियत पर फतह शिकस्त का इन्हिसार था। जब वो हार गया तो उसने सोचा अब भाई को मार देना चाहिए, चुनांचा उसने अपने भाई को कत्ल किया। औलादे आदम में ये पहला कत्ल था। यहीं से जहन मिला कि जालिम पहले हारता है
उसके बाद मारता है। तो इमाम हुसैन अलैहि वालैहिस्सलाम की कुर्बानी बता रही है कि यजीद पहले मूर्छा हार गया था, उसके बाद उसकी तलवारें इमाम हुसैन की गर्दन पे चली थी। यजीदी पहले जंग हार गए थे, उसके बाद मारने का मंसूबा और प्लान बनाया था। अब जंग किस बात की थी? यजीद जैसा बदबातिन बदअमल इंसान इमाम हुसैन के पाकीज़ा हाथ को अपने हाथों पे चाहता था, उनसे बैअत करवाना चाहता था। इमाम ने जहन दिया, शरीयत को तबीयत के कालब में ढालने वाले के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरे सामने मुसल्ले खिलाफत है, मेरे सामने हजरत अबू बकर का इशार है, मेरे सामने हजरत उमर की कुर्बानी है, मेरे सामने उस्मान गनी की शुजाअत है, मेरे सामने मौला की शहादत है, मेरे सामने हसन मुश्तबा का सब्र और इशार है। मैं कैसे इन तमाम खिदमात पे पानी फेर दूं? इमाम अगर यजीद के हाथों में बैत कर लेते तो अबू बकर की खिलाफत पे पानी फेरते, उमर की अदालत पे पानी फेरते, उस्मान की सखावत पे पानी फेरते, मौला की शुजाअत पे पानी फेरते, हसन के सब्र और तहम्मुल पे पानी फेरते। इमाम के सामने बड़ी सारी जिम्मेदारियां थी, बड़ी सारी कुर्बानियां थी। उन कुर्बानियों की हिफाजत करना भी अगली नस्लों की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। मिसाल देकर उबैदुल्लाह आज़मी तुमको समझाना चाहता है, तुम्हारे बुजुर्गों और पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो जितनी कुर्बानियां हिंदुस्तान की आजादी के लिए दी गई हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियां आने वाली नस्लों को हिंदुस्तान की आजादी की हिफाजत के लिए देनी पड़ेंगी। अगर हिंदुस्तान की आजादी की हिफाजत के लिए तुमने अपने बुजुर्गों से ज्यादा कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर नहीं रखा तो तुम्हारी आजादी गुलामी में तब्दील हो सकती है। तुम्हारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की किसी साजिश के साथ सौदा नहीं किया, तब तुम्हारा मुल्क आजाद हुआ था। और तुम तहलका.com में इस मुल्क के साथ दलाली करने वाले चोरों को जब देखो तो समझ जाओ कि हिंदुस्तान की आजादी गुलामी में तब्दील होती हुई चली जा रही है। हिंदुस्तान का वकार जिल्लत में तब्दील होता हुआ चला जा रहा है। किसी भी मुल्क की जिंदगी और बका का इन्हिसार कुर्बानी पे होता है। जिस इज्म के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर उस इज्म को दुनिया के सामने रखा है, उसकी सलामती फ्यूचर में भी रहे, आने वाली नस्लों को कुर्बानी की जिम्मेदारियां अपने सरों पे लेनी पड़ती हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां इस्लाम के कानून मुहज्जब को बचाने के लिए दी थी, वतन कुर्बान किया मगर कुरान कुर्बान नहीं किया। मैदान ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए मगर कुरान के अल्फाज को शहीद नहीं होने दिया। रंगे खंदक में पेट पे पत्थर बांधा मगर इस्लामी फिक्र और नजर के पेट पे शबखून नहीं लगने दिया। नबी की ये सारी कुर्बानियां निगाह के सामने रखो, तब इस्लाम जैसा मजहब मुहज्जब तुम्हारे हाथ में आया है। जब बद्र की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल की बेकरारियों ने दुआओं का जामा पहना है, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। जब ओहद की धरती पर दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, तब ये नेमत तुम तक वदीयत की गई है। जब ताइफ की धरती पर पाए मुबारक लहूलहान हुआ है, तब इस्लाम तुम तक पहुंचा है। और आगे बढ़ो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी मानीन ज़कात से जिहाद किया था, मुर्तद्दीन को कत्ल करने के लिए फौजी दस्ते भेजे थे। फारूक आजम ने अपने जमाने में इस्लाह माशरा का वो हसीन कारनामा अंजाम दिया था कि शैतान भी उनके वजूद से कांपता था। सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शायदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शायदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उस्मान गनी को देखो, शरीयत इस्लामिया के कानून को बचाने के लिए बागियों की जमात कहती है, ए उस्मान तुम्हारी मोहर लगी हुई है, हमारे कत्ल के लिए एक साजिश हुई है, इसलिए मोहर लगाने वाले मरवान को हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कहा जंग की बुनियाद पर किसी को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। शरीयत का एहतराम करते हुए उस्मान गनी ने अपनी जान दे दी मगर उस दुश्मन को उनके हवाले नहीं किया, इसलिए कि जन और कयास की बुनियाद पर मुतालबा किया जा रहा था। यकीन की बुनियाद पर उनके सामने कोई ऐसा सबूत नहीं था कि मोहर उसी ने लगाई है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस्लाम के नाजुक ख्यालात की हिफाजत लोगों ने अपनी अपनी जान देकर के किया है। हजरत अली ने इस्लाम के नाजुक ख्याल की हिफाजत अपनी जान देके किया है। अब यजीद इस्लाम की शक्ल बदल रहा था। जिस तरह सब लोगों जिस तरह मुफ्त के मुफ्ती हर मसले में फतवा दे दिया करते हैं, बिला सोचे समझे फतवा दे दिया करते हैं, उसी तरह से ये भी मुफ्त का मुफ्ती था जिसको यजीद के नाम से याद किया जाता है। ये दीन इस्लाम से बगावत करता हुआ सामने आया था, इसलिए जरूरी
تھا کہ دین کا سچا مفتی اس کی کمر کو توڑ دے, دین کا سچا مفتی اس کے ہاتھ پیر کو چکنا چور کر دے. امام حسین نے اس کا چیلنج قبول کیا. اس نے کہا حسین میں تم سے زبردستی بیعت لے لوں گا. حسین نے کہا میں کسی قیمت پر تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. تو اب مقابلہ ہوا بیعت اور عدم بیعت کے نام پر. اگر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے یزید تو یزید مورچہ بھی جیتتا ہے اور جنگ بھی جیتتا ہے, اور اگر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے یزید تو یزید مورچہ بھی ہارتا ہے اور